the place where Yogi Adityanath is performing those puja rituals, and we are expecting any time now he will be laying the first carved stone in the Garbhagriha or the Sanctum Sanctorium of the temple. देवताभ्यो नमः ओम सर्वदेवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय आइए विनोद जी। All right, so staying with these live images on our screen right now, coming in of UP Chief Minister Yogi Adityanath, who is in fact is in a way making history and a milestone for the state of Uttar Pradesh as well as for the development of the temple premises in Ayodhya, with the stone laying ceremony of the Garbhagriha or the Sanctum Sanctorium of the temple to place the first carved stone in it. Remember, he's taking part by placing the first carved stone in it. There have been seers, saints, mahants from across the country that have been invited on this occasion, and as my colleague Mohit has also been reporting and getting us those voices from Ayodhya, the excitement is certainly high amongst the people there. निखिल सोमपुरा जी अपने इस मंदिर के आर्किटेक्ट हैं। सोमपुरा के उसके बाद परेश सोमपुरा विष्णोः कर्माणि पश्याता जातो व्रतानि पशुपासे श्रीमान अशोक मालवीय, ये तीनों इस पत्थर के तराशी करके यहाँ रखने वाले हैं मंदिर निर्माण। विजयते रामम ग्रेनेड के पहले जो सप्लाई किया कर रहे हैं वो श्रीनाथ जी हनुमान ग्रेनेड के आगे जाएंगे। तस्मै नमः हनुमान ग्रेनेड के नास्ति परायण। Back to my colleague Mohit once again, even as we are staying with these images on our screen right now of Yogi Adityanath performing the stone laying ceremony of the Garbhagriha. And Mohit, it was just 2 years ago when we saw how the Prime Minister was in Ayodhya to perform in fact the Bhumi Pujan of the temple, and once again we are witnessing the detailing that is being placed as far as the building of the temple is concerned, be it bringing in stones and marbles from Rajasthan or even the detailing in the design of this temple. Yogesh Pathak. Well, you see, since the inception of Ram Mandir movement, we have seen the stones, bricks, marbles have been brought in from Rajasthan and other places, from various peoples, from Vishwa Hindu Parishad and other affiliated organizations here in Ayodhya, and it has been happening since 1919, since the inception of Rath Yatra by Lal Krishna Advani. Remember this case, the first case in this particular matter was filed in 1949, and Ram Prasad Visharad was the man who filed that particular case. And since past all those years, we have seen that how there has been demand for a grand Ram temple over here in Ayodhya, and after the Supreme Court's verdict, we have seen that how the trust was being made by the government, and then the work started expeditiously. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation, and then today is the big day when Yogi Adityanath is laying the foundation of the Sanctum Sanctorium. I'll show you the scenes over here, and also it's also for the viewers that how exactly Hanuman Gadi is all decked up over here. Now Hanuman Gadi is all decked up over here. People are coming in from all across the country, and this was the place where Yogi Adityanath few moments from now was here. He offered his prayers over here, and you can see on today, because people know that today is the day when the foundation is being laid, they have come over here in huge numbers. Sir, कहाँ से आए आप कहाँ से आए? अच्छा, आज के दिन जब आप आए हैं दर्शन के लिए, योगी आदित्यनाथ शिला पूजन कर रहे हैं जहाँ रामलला की मूर्ति लगेगी, कितना बड़ा दिन मानते हैं सर? बहुत हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। रामलला वर्षों से जो है वो कैद में थे एक तरह से, आक्रांताओं ने मंदिर को अपने उसमें रखा था। अब हम लोगों का कम से कम
जगह रुकना मिल रहा हिंदुत्व जगह है और बड़े गर्व की बात है। हम तो चाहते हैं काशी और मथुरा भी इसी तर्ज पे बने मंदिर का निर्माण। आपको लगता है कि आज के दिन जब आप आए हैं, आपके आने की एक तरह से दुगनी खुशी हो गई? एक तो आपके दर्शन हो गए। बिल्कुल, इसीलिए दर्शन करने भी आए हैं जी। So there you heard the people over here, and these are the visuals from the Hanuman Gadi. These are the important visuals from Hanuman Gadi, and these are the priests. And we'll just sir, योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो योगी आदित्यनाथ हमेशा हनुमान गढ़ी आते हैं पहले जी। योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या आते हैं हनुमान गढ़ी आते हैं। पहले हनुमान गढ़ी ही आते हैं। क्या पहला दर्शन हनुमान जी का है। अच्छा, पहला दर्शन हनुमान जी का है। पुजारी जी हनुमान जी का दर्शन करना पड़ेगा। प्रथम दर्शन हनुमान गढ़ी है। राम There you see the people over, the priests over here have said that if you come to Ayodhya, the first place that you visit is this holy place of Hanuman Gadi. And Yogi Adityanath came over here, and Prime Minister Narendra Modi himself, whenever he comes to Ayodhya, he comes to Hanuman Gadi first. And it is being said that you need to take permission from Hanuman Gadi, from Lord Hanuman, and then you proceed for the darshan of Ram Lalla and in the other parts. So today is the day when the foundation is being laid. People are excited over here, and in some time from now, the foundation laying ceremony will be over at around 12:30. Yogi Adityanath will be going back to Lucknow in his official helicopter, and then the proceedings will end over here. But people say it's just the start. It's just the start of having a grand Ram temple over here in Ayodhya. Back to you in studio. And stay with us, Mohit, even as we are staying with these live images on our screens right now, coming in of the Chief Minister Yogi Adityanath performing the laying of the foundation stone of the Garbhagriha or the Sanctum Sanctorium of the temple by placing the first carved stone in it. We saw how the Mahants, the Pujaris as well as the Pandits there have been chanting and in fact performing the puja in presence of the Chief Minister himself. And in a statement, remember, last week issued by the Ram Janmabhoomi Trust, who have been in charge of the temple construction, they have said how white marbles from Makrana Hills of Rajasthan would be used in the Sanctum Sanctorium. We'll also now go across to Acharya Vikramaditya joining us over the phone line. Acharya ji, आप किस तरह से इस दिन को देखते हैं? This is a milestone as far as the construction of the Ram temple is concerned in Ayodhya. Certainly, this is the basic. From last so many years, Hindu community is waiting for this period. स्वाभिमान का अब निर्माण होने जा रहा है और वो बड़ा सुंदर तरीका है। और स्मारिका विमोचन की तैयारी करें अशोक तिवारी जी। स्मारिका विमोचन की तैयारी करें। हेलो जी आचार्य जी, हमें हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस दिन की किस तरह से खासियत क्या है? दिस इज अ सैंक्टम सैंक्टोरियम वी आर टॉकिंग अबाउट, जहां पर राम लल्ला के आइडल को रखा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है उन सभी राम भक्तों के लिए जो इस दिन के लिए बहुत दिनों से या बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पिछले 500 सालों से जिस प्रकार का इंतजार था और अब वो समय आ गया है कि भगवान के गर्भभूमि का, गर्भस्थल का जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र के लिए तरस रही थी वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों
की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। निर्माण कार्य से जुड़ी हुई जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, विगत पौने 2 वर्ष के अंदर बहुत तेजी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके करकमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है, अपना समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है गुरु जी की भी इच्छा पूरी हो रही है वैद्यनाथ जी? देखिए, सभी पूज्य संतों का और खासतौर पर गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियां इस पूरे कार्यक्रम के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही थी। सरदेव अशोक सिंगल जी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और अन्य उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को सचमुच अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी जब ये भव्य कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के नेतृत्व में, निर्देशन में यह भव्य रूप साकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन सभी पुण्य आत्माओं को भी अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी, शांति की अनुभूति हो रही होगी, जिन्होंने 500 वर्षों तक अनवरत इस संघर्ष को कहीं भी मंद नहीं पड़ने दिया और निरंतर इसके लिए कार्य करते रहे। और अंतिम निर्णायक जो अभियान प्रारंभ हुआ था सरदेव अशोक सिंगल जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, पूज्य संतों के नेतृत्व में साकार रूप लेता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और आज गर्भगृह में भी शिला पूजन का कार्यक्रम रखते ही अब मंदिर निर्माण के कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। That was UP Chief Minister Yogi Adityanath expressing his thoughts as far as the laying of the foundation stone of the Sanctum Sanctorium is concerned, going back to in fact Mr. Vikramaditya, who is also Acharya Vikramaditya ji. We just heard how Yogi Adityanath expressed his in fact luck as well as happiness as he got the opportunity to inaugurate the Sanctum Sanctorium। और किस तरह से उन्होंने कहा कि राम टेम्पल जो है वो पूरे देश का टेम्पल है और कई सालों से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, राम इस देश की आत्मा है और इस समस्त हमारे पूर्वज हैं और उनका सम्मान बहुत आवश्यक है। हमारे संविधान तक में उनको स्थान दिया गया है, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि राम मंदिर का निर्माण होता। वो हमारा स्वाभिमान है वास्तविक तौर पे। और जिस प्रकार से स्वाभिमान को विध्वंस करने का लगातार कुछ प्रयास किया जा रहा है, अब वो स्वाभिमान के निर्माण की जो शुभ वेला आ गई है। और जिस प्रकार से इस वक्त शिला पूजन चल रहा है, विभिन्न शिलाओं को जो स्थापित किया जाएगा गर्भगृह में, और वहां से पूर्ण आगे जो भव्य मंदिर का निर्माण होना है उसका वास्तविक आरंभ जो हो जाएगा, बहुत जल्दी भव्य रूप में भगवान का मंदिर वहां पर हमको दिखाई देगा। वो वास्तविक तौर पर भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर की एक ऐसी अद्भुत पहचान बनेगा कि जिससे समस्त भारतीयों को अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा कि हमारी संस्कृति क्या संस्कृति रही और किस किस प्रकार से हमने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। कोई हम पे आक्रमण भी करता था तो हमने उसका जो भी स्थितियां रही उसका प्रभाव किस प्रकार से रहा इस देश में, संस्कृति में किस किस प्रकार से आक्रांताओं ने इस संस्कृति का विध्वंस करने का कार्य किया गया। आज उस स्वाभिमान के निर्माण की जो वेला का पदार्पण किया जा रहा है वो वास्तविक तौर पे बहुत सुंदर है। और इस वेला का हम सब लोग दर्शन कर रहे हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम सबका सौभाग्य है कि इस
सुंदर वेला पर हम सबको इस आपके चरणों के माध्यम से पूरे भारत को, पूरे विश्व को सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और जिस प्रकार से समस्त हिंदू समाज, समस्त भारतीय समाज आह्लादित है, आनंदित है और इस सुंदर सौभाग्य का दर्शन करने के राम का घर बन रहा है, हमारा मंदिर बन रहा है और हमारी भारतीय संस्कृति को जीर्णोद्धार करने के लिए, पुनः संस्कृति का निर्माण करने के लिए, उस अंधकार से पुनः प्रकाश की तरफ जाने के लिए एक सुंदर भव्य भविष्य, सुंदर भविष्य के निर्माण के जो कार्य इस वक्त हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा स्वरूप किया जा रहा है वो बहुत स्तुति योग्य है। और योगी जी ने जिस प्रकार से समस्त अपनी तीनों जो कहा कि पीठों का जिस प्रकार से जिस प्रकार से गद्दियों को लगातार संघर्ष, अब वो संघर्ष का शांत होने के बाद सुंदर तरीके से भगवान का निर्माण हो रहा है। आशा करते हैं बहुत जल्दी भगवान को, रामलीला को वहां हम देखेंगे और आनंदित होंगे, आपके साथ बैठ के टीवी पर बड़े अच्छे से देखेंगे। धन्यवाद आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए टाइम्स नाउ पर, और हम आशा करते हैं कि आप दोबारा हमारे पास भी आएंगे। लेकिन टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक नाउ, वी आर हेडिंग इनटू अ क्विक ब्रेक, वी विल बी बैक विद द लेटेस्ट ऑन द अदर साइड। निवेदन है